जम्मू कश्मीर में नई एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है। ऐसे में जम्मू कश्मीर की जो भी गरीब बच्चे हैं वो अब एजुकेशन के बिना नहीं रह पाएंगे। सर आपका नाम? My name is Shamsher Singh Nathyal. I am founder director Radha Foundation. Radha Foundation is a charitable organization which we formed in the memory of my wife along with my daughter Tanvi Nathyal. Our main aim is to spread awareness among the unprivileged people who don't have access to the education system or the different pattern of education, new education policy, new exam systems, and we are focusing mostly on peripheral schools and to such students who cannot otherwise afford such facility. With me is Mr. Rajesh Mishra. He is all in all with regard to Radha Foundation. राजेश जी, जो सेंट्रल डिपार्टमेंट से एक नई एजुकेशन पॉलिसी आई हुई है जो जम्मू में कि 10वीं क्लास का बोर्ड हम हटा देंगे और उसके बाद जो भी ग्रेजुएशन करेगा ग्रेजुएशन के बाद डायरेक्ट वो पीएचडी कर सकता है, उस एजुकेशन पॉलिसी और जो आप जम्मू की एजुकेशन पॉलिसी आपने लॉन्च करने जा रहे हो उसमें क्या फ़र्क रहेगा? NEP 2020 is a flagship program of the current central government, Ministry of Education under the current minister, Mr. Dharmendra Pradhanji. They have a vision, and this vision is that by 2030, every child in this country should be skilled, they should be high on employability potential, they can stand tall on their feet, they can, they can exploit enough opportunities around. So, this is a challenge because it's a complete change from the traditional format which was existing for decades. People are slow to accept these changes, and any change would be resisted. So I would request educators, principals, senior teachers, school management to understand, to spread this awareness and to help everybody to reach out to the stakeholders. Radha Foundation has organized educators meet today at Radisson Blu, where all of us, almost 60 principals of Jammu region, right from Rajouri to Poonch to Aknoor to Udhampur. जम्मू रीजन के 6 प्रिंसिपल आए, 60 Including government high school. and government schools, army public schools, Navodaya, Sainik school, private schools, public schools. So there is a participation of different segments. So we have, so for last 1 month, Radha Foundation was working on ground, the team members, and we got great support from people in Jammu, and we are hopeful that going forward we'll be able to execute and implement our ideas. We'll be able to reach out to maximum people. We'll be able to educate our teachers so that new introductions like CUET, NEP, etc., everybody is aware how to take advantage, how to, right from filling of the forms to how they can excel, how they can do exceedingly well and get into the top universities of this country. मैम आपका नाम? तन्वी। तन्वी जी, मैं सबसे पहले आपसे पूछूंगा कि अभी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस काफ़ी कॉस्टली हो चुके हैं, ऐसा राधा फाउंडेशन जो आपने लॉन्च की है ये कितनी मदद कर पाएगी आम गरीब बच्चों के लिए? हमारी तरफ से कोशिश रहेगी, हम वी आर नॉट प्रॉमिसिंग एनीथिंग दैट वी विल प्रोवाइड फ्री एजुकेशन टू द किड्स. आवर मेन अप्रोच इज़ टू गिव एक्सपोजर टू द किड्स सो दैट दे नो कि आप अगर किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जा रहे हो, क्या एक नॉर्मल स्कूल की फ़ीस होनी चाहिए, क्या एक कॉलेज की फ़ीस होनी चाहिए और कौन सा कॉलेज एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है. हम वो नॉलेज देना चाहते हैं बच्चों को. हम किसी को एजुकेशन प्लेटर पे नहीं दे रहे हैं, हम फ्री नहीं कर रहे हैं एजुकेशन, हम लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं. हम एजुकेशन के बारे में समझा रहे हैं, पॉलिसीज़ के बारे में, फॉर्म्स के बारे में, न्यू टेस्ट, न्यू सेंट्रल पॉलिसीज़ जो एजुकेशन की हो रही है उनके बारे में नॉलेज देना चाह रहे हैं. और हम ये सब एक वाया थ्रू, यू कैन नॉट रीच टू ईच एंड एवरी किड.
So our understanding is if we reach to the education ministry or if we reach to the schools, हम schools में teachers को जाके बताएं कि अब ये change आ रहा है, ऐसा हो रहा है, कि career counseling दे बच्चों को, उनको समझ आए कि उनके पास क्या क्या occupation के options हैं available, ये हम provide करने की कोशिश कर रहे हैं. Overall awareness and knowledge about education is more important right now, जो हम provide करने की कोशिश कर रहे हैं. We are not promising anything related to free education. We don't want to do that because education एक ऐसी चीज़ है जब तक आप अपने आप कुछ नहीं करोगे आप आगे कहीं नहीं जाएंगे. मतलब नॉर्मल चीज़ है. इवन इफ़ यू वांट टू ईट फूड आपको अपने हाथ से ही खाना है, तो पढ़ाई तो आपको अपने आप ही करनी है. उसके लिए फ्री का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं. एनीथिंग कमिंग फ्री इज़ नॉट यूजफुल आई फील. मतलब राधा फाउंडेशन खास क्या बच्चों के लिए लाएगी जम्मू में? Awareness and support if required, but right now what we are promising is full awareness. I would just like to add to that. Basically, we plan to do a lot of career counseling sessions. We would like to create camps to train teachers in terms of how students can fill in forms for CUET, what universities they should apply. We will also help class 9th and 10th students get aware about options like public policy, like liberal arts, like international relations. You know, people here talk of medicine, engineering and civil services, maybe teaching and banking as the only options. So we are here to tell the world that there are at least 110 options available which did not exist 10 years ago. आपका नाम? अरुण गुप्ता. अरुण जी, खास राधा फाउंडेशन में क्या क्या आप बताना चाहते हो, क्या क्या एजुकेशन पॉलिसी में क्या क्या अवेयरनेस लाई गई है? राधा फाउंडेशन जो है इट हैज़ बीन फाउंडेड बाय श्री एस नथयाल एंड हिज डॉटर तन्वी नथयाल. ही इज़ द co-founder of this organization and their main objective is to bring awareness amongst the masses, not in the upper class, even up to the lower class, up to the minimum level of the people, to go beyond. Sky is the limit. They have come here to make the aware of the people. That's why they have called a seminar today where they have called more than 40-50 principals, then lecturers, then other persons connected with मैं education. शायद आपकी एक PDF फाइल में पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि 2047 तक हम पूरा एजुकेशन पॉलिसी को प्रमोट कर पाएंगे. That is government policy. वो गवर्नमेंट का पॉलिसी We are है. only instrument in telling the people उनको what options are there, how to achieve that 2047. तो मैम, ये जो आपकी फाउंडेशन है इसमें आप कहाँ कहाँ पर कैंप्स लगाएंगे ताकि लोगों को अवेयर किया जाए, ताकि बच्चों को अवेयर किया जाए कि वो अपने पढ़ने की तरफ ध्यान दें? अभी जो मीडियम है हम लोगों का, इट इज़ फ्रॉम स्कूलिंग. हम स्कूल के फॉर्मेट से ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाना चाह रहे हैं. दैट्स वाई आज यहाँ पे प्रोफेसर्स, टीचर्स आए हैं, प्रिंसिपल्स आए हैं. दे विल गेट द नॉलेज ऑफ येस दीज आर द चेंजेस इन द पॉलिसीज़, दिस इज़ हाउ दे शुड इन्फॉर्म द किड्स इन देयर स्कूल. अब ये कैंप्स अभी यहाँ जम्मू में लगा है. दिल्ली में हम 24 जगह पे ये कैंप कर चुके हैं. जम्मू में इस बार पहली बार हुआ है, लेकिन ये रेगुलरली वी वांट टू टेक इट टू मोस्टली टू टियर 2 एंड टियर. ये रेगुलरली हर स्कूल में जाया जाएगा, हर एक यूनिवर्सिटीज़ में जाया जाएगा अवेयरनेस. धीरे धीरे जाएगा. हम लोग धीरे धीरे पूरा प्रोग्रेस कर रहे हैं. हम लोग चाह रहे हैं कि हम हर जगह पहुँचें, हर जगह ये इन्फॉर्मेशन जो सब लोगों के लिए होनी चाहिए और जो कुछ लोगों के पास है इस वक्त, वो हम हर किसी के पास पहुँचा सकें. इसमें थोड़ा मैं ये ऐड करना चाहता हूँ कि इन्होंने प्रोग्राम जम्मू में ऑर्गेनाइज़ किया, लेकिन इसमें रजौरी, पुंछ, दूर दराज उधमपुर, आरसपुरा, उधमपुर सब एरिया से इधर जो सर ये J&K की एक संस्था है या ऑल ओवर इंडिया? ऑल ओवर इंडिया. ये रजिस्टर्ड चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, ये चैरिटेबल है, रजिस्टर्ड तो दिल्ली में है. सिंस माई रूट्स आर इन जम्मू, मैं जम्मू का हूँ, इसलिए हम चाहते हैं कि जम्मू के वो बच्चे जिनको ये एक्सपोजर नहीं मिला, जिनको ये अवेयरनेस नहीं मिली, हम उन तक पहुँचें.
हम कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना चाहते। वी आर नॉट टेलिंग कि हम ये करेंगे वो करेंगे, हम एटलीस्ट ये करेंगे जिन बच्चों को ये नॉलेज नहीं है कि आजकल क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है, क्या क्या सब्जेक्ट्स अवेलेबल है, क्या क्या एजुकेशंस में हो रहा है, क्या क्या प्रमोशंस हो रही है, क्या क्या हमने सब्जेक्ट्स लेने चाहिए, कॉमर्स के बाद क्या लेने चाहिए, नॉन मेडिकल में क्या लेने चाहिए, मेडिकल में क्या। नहीं, यहाँ पे प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है जम्मू के अंदर, मेडिकल, नॉन मेडिकल, इंजीनियरिंग, डॉक्टर आर द मेन ऑक्यूपेशंस ओवर हियर बिकॉज ऑफ नो प्राइवेटाइजेशन। अब जब हमारे पास एक प्राइवेटाइजेशन का ऑप्शन आए हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ विल ऑल्सो इंक्रीज, बट हम लोगों को एक माइंडसेट को भी अपने आप को एक्सपोज करना पड़ेगा कि ये दो सेट जॉब ऑप्शंस नहीं हैं, हम लोगों के पास और ऑप्शंस आएंगी। आप एमएनसीज़ के साथ काम कर सकते हैं। धीरे धीरे जम्मू के अंदर जब एमएनसीज़ खुलेंगी, मल्टीनेशनल कंपनीज आएंगी, आप लोग अडेप्ट होंगे, हम सब लोग, हम गवर्नमेंट जॉब्स या हम लोग जो केएस के लिए इस वक्त इंडिया के अंदर एटलीस्ट कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन जो भी सर्विस यहाँ अप्लाई करता है, भरते हैं जो ग्रेजुएशन के बाद, उनके लिए खास क्या कहा गया? कश्मीर नहीं, नो मैं ऐड करूँगा। वी नीड टू अंडरस्टैंड, जम्मू में 3-4 सब्जेक्ट्स ही हैं जिनके बारे में लोग जानते हैं, डॉक्टर, इंजीनियरिंग, केएस, मैक्सिमम, पुलिस, टीचर, but banking. There are near about 26 subjects in the new education policy, which talks about creativity, which talks about your media, which talks about artificial intelligence. So this scope is so much, but our people are not knowing it. And people are getting only to these things because they want government jobs. We wish to tell them that that's not only the limit. That's not the option. Options are various. If you will go for creativity, you can do your own business, you can do a job in the private sector where you have much more exposure, much more potential than government. ये जो गवर्नमेंट पर डिपेंडेंस है ना, मैं देखता हूँ 1200 वैकेंसी यहाँ 1,09,000 बच्चा अप्लाई करता है। बिल्कुल, अब खुद जो अब समझो ना, 1,09,000 बच्चे से 1200 बच्चा अप्लाई करता है, मतलब है 1,000 से एक बच्चा। तो हम क्या कर रहे हैं, हम उन जो बाकी बच्चे हैं उनको ये कहते हैं जहाँ बहुत कुछ है करने के लिए, बिल्कुल छोड़ दो इसको, अगर आपने जरूरी नहीं है पुलिस में जाना। मतलब अगर एक बार ट्राई किया, आपकी इच्छा है काम करने की, आपको पेपर देना है, केएस का पेपर दीजिए, आप यूपीएससी का पेपर दीजिए, आपको जो पेपर देना आप दीजिए। लेकिन एक जो होप जुड़ी है ना जम्मू के अंदर, जो मैंने पर्सनली बचपन से अभी तक देखी है कि एक इंसान एक बार पेपर देता है, फिर अगले साल देता है, फिर अगले साल देता है, 6-7 बार ट्राइज के बाद भी कि उसका जो जोश है गवर्नमेंट जॉब के लिए वो कम नहीं होता है। लेकिन वो इस पैन के अंदर ये भूल जाता है कि 6-7 साल उसने अपने ज़िंदगी के गंवाए, अगर अब उसको कहीं नौकरी करने जाना पड़ेगा तो उसकी सैलरी भी वहाँ से ही शुरू होगी, 6-7 साल पुरानी। मैम, जो गवर्नमेंट जॉब जम्मू कश्मीर में जिस बच्चे को नहीं मिल पाई पढ़ने के बाद भी, उसको किस ढंग से अवेयरनेस मिलेगी? उसको नए ऑक्यूपेशंस के बारे में पता चलेगा, उसको प्राइवेट सेक्टर के बारे में पता चलेगा, उसको पता चलेगा कि प्राइवेट सेक्टर में कैसी जॉब्स मिल सकती हैं, कहाँ से आपकी फाउंडेशन शुरू होगी। एक बात, जम्मू कश्मीर में तो आपको पता ही है कि प्राइवेट सेक्टर कितने ऊपर हैं या कितने नीचे हैं, कुछ नहीं है। मैं थोड़ा सा बोलूँगा, हम लोग जब भी प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं, अपने घर में प्राइवेट सेक्टर ढूंढते हैं। नौकरी के लिए वो कुपवाड़ा जाएगा, लेकिन प्राइवेट नौकरी के लिए वो जलंधर नहीं जाएगा। ये जो माइंड सेट है, ये एरिया स्पेसिफिक नहीं है, ये माइंड सेट है गवर्नमेंट नौकरी करनी है। मैंने कहा आई नो, एक बच्चा 12 साल से मेरे साथ है, मेरी एक लाइब्रेरी है, उसको देखता है, फॉर लास्ट 12 ईयर्स वो गवर्नमेंट की नौकरी ढूंढ रहा है और अब नौकरी नहीं मिली, फ्रस्ट्रेशन मिली। मगर सर, जम्मू कश्मीर के ही बच्चे ऐसे हैं जो गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, मगर दिल्ली बम्बे के काफ़ी कम, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर बड़ा है। दिल्ली बम्बे में काफ़ी मेट्रो सिटी और काफ़ी बड़ा लंबा टॉपिक हो जाएगा, वो यू डोंट हैव। मेरी एक रिक्वेस्ट है, दैट इज व्हाट वी वांट टू मेक क्लियर टू द पीपल ओवर हियर, कि सिर्फ अपने आप को 3-4 चीज़ों तक सहमत मत रखो। गवर्नमेंट नौकरी मत ढूंढो, यू आर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, आपको एक्सपोजर मिलेगा, एक कंपनी में नौकरी करोगे, दूसरी में करोगे, एक वैकेंसी निकलती है 1000 एप्लीकेशन लग जाती है, 400 वैकेंसी निकलती है, लाखों एप्लीकेशन लग जाती है, फिर एक उम्मीद बन जाती है। वो उम्मीद तो ज़्यादा से ज़्यादा 400 लोगों की पूरी होगी, जो बाकी लोग हैं उन लोगों के लिए तो फ्रस्ट्रेशन है। तो वी वांट टू टेल पीपल कि और बड़ी ऑप्शन है, इसके बगैर भी बड़ी ऑप्शन है।
ये भी ऑप्शन है। और लेकिन सबको ये नहीं समझ आता कि पावर का कंफर्ट प्राइवेट में भी मिलेगा, गवर्नमेंट में भी मिलेगा। क्या करेंगे? जम्मू कश्मीर में लोग सोचते हैं कि गवर्नमेंट हमें नौकरी मिलेगी और हमारे जीते भी पैसे हैं और मरने के बाद भी पैसे हैं। आपका व्यू पॉइंट है, ये धीरे धीरे माइंडसेट ही चेंज करना है, इसीलिए हम माइंडसेट चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। हम इसलिए मैं बोल रही हूँ कि हम कुछ नया नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ माइंडसेट चेंज कर रहे हैं, बस इतना ही करना है। एक्सपोजर मतलब यही जो लोगों को नहीं पता है, जब पता है लोगों को वो उसको यकीन नहीं करना चाहते, हम उनको यही बताते हैं। तो हमने 12 साल हो गया कि नौकरी को ढूंढते हुए, गवर्नमेंट नहीं मिली। 12 साल में प्राइवेट सेक्टर में किया होता, आज किसी कंपनी का CEO बना हुआ होता। बिल्कुल उस कंफर्ट जोन से लोगों को बाहर निकालने के लिए एजुकेट करना चाहते हैं, बाकी उसकी मर्जी है, बाकी बट कोई काम। ये थे हमारे साथ कुछ राधा कृष्ण फाउंडेशन के डायरेक्टर्स। उनका साफ तौर पे कहना है कि आज हमने रेडिसन में एक मीटिंग रखी है जिसमें साफ अक्षरों में कहा गया है कि जिस भी बच्चों को अवेयरनेस नहीं होगी एजुकेशन की, उनको अवेयरनेस हम देंगे एजुकेशन की। दीजिए इजाज़त मुझे, मेरी सभी टीम को देखते रहिए। वीडियो जर्नलिस्ट इंद्रजीत राणा के साथ मैं विकास गुप्ता, यंग बाइट जम्मू।